9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਿਤ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 16 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ 16 ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕੁਐਸਚਨ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਕੁਐਸਚਨ 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 3/5 ਅਤੇ 4/5 ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਟਾ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨੰਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਅਨੰਤ, ਅਨੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਆਉਂਦਾ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.1 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 1.2 ਵੀ, 1.3 ਵੀ, 1.4 ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 1.1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.11, 1.12, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਤ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 37/8 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 37/8 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ 37 ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 8 ਨੂੰ ਬਾਹਰ। 8 ਚੌਕਾ 32, ਬਕਾਇਆ ਆ ਗਏ 5, ਦਸ਼ਮਲਵ 0 ਲੱਗ ਗਿਆ। 8 5 40, 8 6 48, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ 2, ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ 0। 8 दूनी 16, बकाया 4, ऊपर उतार लिया 0। 8 5 40, भाग खत्म हो गई। इसका ਇਹਦਾ मतलब दशमलव विस्तार क्या होएगा? शांत होएगा। लेकिन इसनों करने का एक होर तरीका भी है। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਣਨਖੰਡ, ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, 37 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਤਾਂ 37 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 8 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 4, 2 ਤੇ 2, 2 ਤੇ 1, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਿੱਚ, ਆ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, 2 ਹੈ ਜਾਂ 5 ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ। ਤੇ ਜੇ 2 ਔਰ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ P2 ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ x ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੋਏਗੀ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 8 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ px ਬਰਾਬਰ 2x ਜਮਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ px ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ px ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, p1 ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ p(1) ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2 ਭਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ, ਜਮਾ 1, 2 ਏਕਮ 2 ਜਮਾ 1, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 3। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਦੇ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੇ 1 5, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਡੀ।
ठीक है बेटा। 6वां क्वेश्चन, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, खेत्रफल पता करना। साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो खेत्रफल मतलब एरिया होंदा है वो लंबाई गुना चौड़ाई होंदा है, लेंथ इंटू ब्रैथ होंदा है। तो लंबाई दी गई है तुहानू x/2 तो चौड़ाई दी है x/1, x/2 x/1। हुण इस x ने पहला उस घर च जाना है, x गया x के कोल x की घात 2, x गया 1 के कोल 1x, 2 गया x के कोल 2x बन गया, 2 गया 1 के कोल 2 बन गया, 1x से 2x मिल के बन गए 3x/2। ये तुहाडा आंसर होना चाहिए। देखो ऑप्शन, लो जी बिल्कुल ढुकवीं ऑप्शन है सी ऑप्शन 6वें क्वेश्चन का। 6 क्वेश्चन कंप्लीट, जिहदे विच असीं बहुत ही सौखे ढंग नाल 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं। हुण 7वां क्वेश्चन देखो, और भी सौखा है बेटा। 3 की घात 8 है, भाग का निशान 3 की घात 2। तुहानूं पता है कि जो भाग का निशान होवे तो घातां घटाउणियां होंदियां ने, 8 - 2, 3 की घात 6 सी ऑप्शन। जे गुणा का निशान होएगा तो घात नूं जोड़ना है, तो घटाओ भाग दे विच घटाओ करना है। ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन, -2y/2 विच की जोड़िया जाए। देखो -2y/2 विच की जोड़िया जाए कि सानू -10y/2 प्राप्त हो जाए। तो दसो गल समझ लगी कि ये विच की जोड़िया जाए। मैं मान लिया x, इसका मतलब दिस, तो इन्होंने दोनों को की करना, जोड़ करनी है तो बराबरी दे रखना है। हुण x कढ़ने लिए x इत्थे रहेगा, दरवाजा खोलने लिए बैठा है 10y/2 माइनस का, तो आ रकम जो उस घर जाएगी तो माइनस तो प्लस बन जाएगी। हुण 10y/2 ये भी 2y/2, 10 माइनस का तो 2 प्लस का, प्लस माइनस माइनस होंगे ने, 8y/2 रह गए पर वड्डे का साइन लगता है। इसका मतलब साढ़े को जी रकम लोड़ींदी है वो की है 8y/2। चैक करिए ऑप्शन, बिल्कुल सही। हुण देखो दूजे ऑप्शन च भी 8y/2 है, तीजे च भी है, लेकिन साढ़े को आंसर माइनस में आया है। ध्यान रखियो कि वड्डी रकम माइनस की है, इस करके असीं आंसर सी टिक करांगे। गलती नाल बी टिक हो गया तो नंबर 0 हो जाने आ, इस गल का ध्यान रखियो। 9वां क्वेश्चन, सही गलत। हरेक परिमेय संख्या एक संपूर्ण संख्या होंदी है। देखो पहला आंदी है प्राकृतिक, ठीक है जी, पहला की आंदी है प्राकृतिक, फिर आंदी है पूर्ण, फिर आंदी है संपूर्ण, फिर आंदी है परिमेय। तो उपरों थल्ले जो जाने तो सही होंदा है, थल्लों उपर जाने तो गलत होंदा है। हुण तुसीं देख लो, परिमेय ते खड़े होके आपां संपूर्ण वल जा रहे हैं, इसका मतलब गलत है। 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। x/2 माइनस वर्गमूल x / 2 एक 2 घाती बहुपद है, गलत, क्योंकि कदे भी x वर्गमूल दे विच नहीं हो सकता। तो ये बहुपद ही है नहीं, तो फिर इसकी घात कितों पता करांगे। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, नॉट अ पॉलीनोमियल। वर्गमूल दे विच 225 एक अपरिमेय संख्या है, सानू उस वास्ते दे गुणनखंड बनाने पैणगे। 5 ते गया 5 चौका 20, 5 5 25, 5 ते गया 9, 3 ते गया 3, 3 ते गया जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। जो सारे जोड़े बन जाए तो फिर इनू कहने परिमेय। अपरिमेय नहीं बोलते, की बोलते हैं परिमेय बोलते, क्योंकि कह रहे अपरिमेय तो गलत है। ठीक है बेटा, जे जोड़े ना बनते फिर अपरिमेय होता। अगला देखो, हरेक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल सही बेटा जी, क्योंकि वास्तविक संख्या सब तो वड्डी संख्या होती है, तो सारिया संख्यावां वास्तविक संख्यावां दे अंदर ही होंदियां ने। 12 क्वेश्चनस कंप्लीट हो चुके हैं बेटा साढ़े, और किन्ने सौखे से तुसीं देखो, हार्डली 9 मिनट दे विच असीं 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हुण 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ए माइनस बी की घात 3 बराबर ए की 3, फिर डैश पाया उसने, इतने माइनस का निशान लाया है, प्लस 3ab की 2 माइनस बी की घात 3। हुण इत्थे पढ़ना, याद रखो इत्थे क्या आना 3
ਇੱਥੇ ਘਾਤ b ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ। ਆ ਘਾਤ ਚੱਕੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 3a ਦੀ 2b, 3a ਦੀ 2b ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 36/100 ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 1 2 0, 1 ਤੇ 1 2 0, 1 2 0 ਫਿਰ ਦਸ਼ਮਲਵ 0.36 सी ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन 8 वर्गमूल 15 है भाग 2 वर्गमूल 3। ठीक है जी, 2 नाल 8 ਨੂੰ ਘਟਿਆ 4 आ गया। वर्गमूल 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वर्गमूल 5 गुणा 3, 5 15 ਹੁੰਦਾ ना, तो वर्गमूल 3 ਤੇ 3 ਕੱਟੇ गए, बचा 4 वर्गमूल 5। डी ऑप्शन। लो जी, एक नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। 16वां क्वेश्चन बहुत ही सौखा क्वेश्चन है। 2x जमा 5x एक डैश बहुपद है। देखो 2x जमा 5x एक डैश बहुपद है। बेटा देखने ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਦੋ ਪਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ x ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ x ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ y ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ 7x ਬਣਨਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ, ਸਰਲ ਰੇਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਰੇਖੀ संख्या बोलेंगे। ना दो पदी है, ना दो घाती है, ना अचल है, ये सरल रेखी है। ए ऑप्शन। इस तरह साढ़े 16 क्वेश्चन एक नंबर वाले कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आए होणगे। हुण आपां इसदा अगला पार्ट करा जा रहे हैं जिहड़े 2-2 नंबर वाले सवाल होणगे। लो जी, ऐड़ा भाग तुहाडे सामने जिहदे विच 6 क्वेश्चन आए ने, 1 2 3 4 5 6 जिहड़े कि 2-2 नंबर दे ने। 12 नंबर की तैयारी करन लगे हैं। ध्यान नाल देखना, बहुत ही सौखे क्वेश्चन ने। सब तो पहला तुहाडे कोल 17वां सवाल करन जा रहे हैं। कहते 3 जमा वर्गमूल 3 ते 3 माइनस वर्गमूल 3 नूं हल करो। याद रखना बेटा, इत्थे पहला अखर भी सेम है, दूजा अखर भी सेम है ते साइन वखरे ने। तो जदों भी इस तरह का होया तो तुसी इक्को ही रूल लगाना बस। ए प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला ए दी घात 2 माइनस बी दी घात 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए तुहाडे कोल 3 है तो बी तुहाडे कोल अंडर रूट वर्गमूल 3 है। लगी समझ? जेकर तुहाडे पहला अखर भी सेम है, दूजा अखर भी सेम है तो साइन वखरे ने, फिर कल्ले ए दी घात 2 होना है, कल्ला बी दी घात 2 होना है तो माइनस का निशान लगना है। जेकर पहला अखर भी सेम होंदा, दूजा भी सेम होंदा, साइन भी सेम होंदा, फिर फार्मूला चेंज हो जाना सीगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। याद रखना इस गल का। 3 की घात 2 होंदा है 9, घात नाल वर्गमूल कट्टिया गया रह गया 3, 9 चों 3 गए 6 तुहाडा आंसर। बस इन्ना जा काम है बेटा, 2 नंबर मिलने ने तुहानूं। 18वां क्वेश्चन देखो, और भी सौखा क्वेश्चन है जी। 16 की घात है 3/4। तुसीं की करना है, तुसीं 16 के गुणनखंड बनाने बेटा, बिल्कुल सामने बनाने कापी दे विच। 2 नाल कितना आ गया 8, फिर 2 नाल कितना आ गया 4, फिर 2 नाल आ गया 2, फिर 2 नाल आ गया 1। हुण इस 16 की थां तुसीं लिखना 2 की घात 4। क्यों लिखिया? क्योंकि 2 1 2 3 4 बारी आ रहा सीगा। बाकी सारी चीज़ ऊपर सेम ही रहनी है, बस 16 की थां 2 की घात 4 लिखनी है तुसीं। आ 4 ते आ 4 आपस च कट्टे जाना, बचा कौन 2 की घात 3, जिहदा मतलब हुंदा 2 नूं 3 बारी लिखना ते फिर गुणा करनी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये तुहाडा 2 नंबर का अगला सवाल भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आ रहे हैं। 2 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। भुलना मत बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन ने, रलते मिलते क्वेश्चन तुहानूं पेपर च मिलणगे। हुण तुसीं अगला क्वेश्चन देखो 19वें क्वेश्चन च आ गया वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 की घात 2। ये बन गया तुहाडे कोल a जमा b की घात 2। इसदा फार्मूला क्या हो गया? a की 2 हमेशा जमा b की 2। हुण इत्थे प्लस है तो प्लस का 2ab, तो जे माइनस होंदा तो माइनस का 2ab। ये याद रखियो। हुण तुहाडे कोल a कौन है? वर्गमूल 5 की घात 2। b कौन है? वर्गमूल 2 की घात 2 जमा 2, फिर a वर्गमूल 5 तो b वर्गमूल 2। इन्ना तो आप लिख ही सकते हैं, वैल्यूज ही भरनी है। आ a है तो आ b है। मैं तुहानूं दस्सिया सी घात 2 तो वर्गमूल कट्टे जाते हैं,
का 2 ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਵਰਗਮੂਲ ਵਾਲਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 दूनी 10 ਰਹੂਗਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। 5 ਤੇ 2 7 ਜਮਾ 2 ਵਰਗਮੂਲ 10 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 20ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ, ਪੱਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। 1 ਵਰਗਮੂਲ 7 ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 6 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मतलब आही रकम सेम ऊपर भी लिखनी है नीचे भी लिखनी है, पर विचकार माइनस तो की बन जाना प्लस, जो प्लस होता तो बन जाता माइनस। हुण उपर वाली रकम में जो आप गुणा करते हैं उपर वाली दे नाल तो सेम ही आ गया, पर नीचे देखो पहली रकम भी सेम दूजी रकम भी सेम, पर साइन वखरे वखरे। पहला क्वेश्चन आ गया ना। जो इदा का कंडीशन आ जाए तो तुसीं की करना है, खाली ब्रैकेट दी कर दो माइनस खाली ब्रैकेट दी कर दो। पहली खाली ब्रैकेट च वर्गमूल 7 दूजी च वर्गमूल 6। देखो तो आंसर किन्नी सौखेवें ढंग नाल आ रहा, घात 2 नाल 7 रह गया, घात 2 नाल 6 रह गया। तो आंसर आ गया वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6/1। 20 सवाल 17 18 19 20 4 सवाल साढ़े हो चुके हैं। 2 सवाल रह गए ने बस, जिहड़े कि 2 नंबर वाले ने। 3 ਅਤੇ 4 विचकार 2 परिमेय संख्यावां, तो फिर सीधा ही 3.1 3.2 खत्म हो गया। की लोड़ है तुहानूं बड़ियां च करन दी, सीधा ही तुसीं 3.1 ते 3.2 लिख सकते हो। लो जी 22वें क्वेश्चन ते पहुँच गए। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2/3 2 ਦੀ ਘਾਤ 1/3। ये तो बहुत ही सौखा है बेटा, गुणा है ना, तुहानूं समझाया सी गुणा दे विच घात नूं की करना है, प्लस करना है। 3 2 ते कितना हो गया 3 कट के कितना आंसर आ गया 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 आंसर। ਜਦੋਂ 2 आधार सेम होण विचकार गुणा का निशान होवे तो घातां जोड़नियां, भाग का निशान होवे तो घातां घटाउणियां, बस याद रखियो। इस तरह साढ़े 22 सवाल, जिहदे च हुण पहलां आपां 16 नंबर की तैयारी कीती सीगी है ना, हुण 12 की होर कर ली। 28 नंबर साढ़े हो चुके हैं 40 चों पक्के, रह गए ने सिर्फ 12 जो कि 4 नंबर के सवाल होने ने। हुण देखो असीं इसे वीडियो दे विच वो क्वेश्चनस भी कर देने आ। लो जी 23वां सवाल कहंदे PX बहुपद नूं x जमा 1 नाल भाग देण ते बाकी लभो। बहुत ही सौखा सवाल। PX तुहानूं दिता गया है x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1 ते x जमा 1 जिस रकम नाल भाग करते हैं उन्होंने बराबर 0 रखा जाता है सब तो पहला। फिर प्लस 1 है उधर भेज दो कि हो जाऊगा -1। तो हुण तुसीं की पता करना है, बाकी कुछ नहीं करना, तुसीं जिथे इत्थे x है ना उत्थे ब्रैकेट लगा दो, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। x दी नहीं x की थां ब्रैकेट लगानी है बस। जो एक और तरीका दस देना, रुक जाओ। पहला x के उत्ते घात कितनी है 3 है ना, 3 ब्रैकेटां लाउणियां, विच कोई साइन नहीं पाना। फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगना है, फिर 3 लिखा तो 3 लिखना है, फिर x के उपर 2 घात का मतलब 2 ब्रैकेटां, कोई साइन नहीं लगना, प्लस का प्लस लग गया वाला, फिर 3 लिख लिया, फिर x में 1 ब्रैकेट, फिर प्लस फिर 1। आ गल समझ लग गई। देखो x की घात 3 सीगा 3 ब्रैकेटां, x की घात 2 सीगा 2 ब्रैकेटां, कल्ला x सीगा 1 ब्रैकेट 1। उस ब्रैकेट च बननी है -1 वैल्यू। देखो 1 2 3 -2 माइनस प्लस बनते हैं, तीजा माइनस फिर आ गया 1 नूं गुणा करके 1 ही आता है। हुण कितने माइनस है देखो 1 ते 2 2 माइनस प्लस बन गए, 3 एकम 3 कितने माइनस, एक ही माइनस तो माइनस लगेगा, प्लस 1 नाल 1 कटिया, 3 नाल 3 कटिया, आंसर कितना आ गया 0। ये तुहाडा फाइनल 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होया। 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसका जहाँ वाला पार्ट करन लगे हैं, ध्यान नाल देखियो। क्वेश्चन है 12x की घात 2 माइनस 7x जमा 1 का गुणनखंडीकरण करो। तुसीं सब तो पहले इनू ते इनू गुणा करनी होंदी है, याद है ना। पहली रकम नूं अखीरली रकम नाल गुणा करके आया 12 एकम 12 पर प्लस था, फिर दैरो लगाना है, इत्थे 1 2 3 4 लिखना है। 1 नूं कितना गुणा करी कि 12 आ जाए, 12 नाल 2 छिके 12 3 चौके 12 4 तिये 12। हुण जोड़ करके 7 कौन बना रहा है,
3 ਤੇ 4। ठीक है ना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो बनया कि 12x की दो पहली टर्म आ दूजी टर्म नाल x लग जाना, आ तीजी टर्म तो लास्ट +1। हुण पहले दोवां दे विचों कुछ कॉमन कटो, 3x बचा 4x - 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ 4x - 1, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4x - 1 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 3x - 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। 24ਵੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। 24ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 99 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। तो तुसीं इहनूं लिखना है 100 - 1 ਦੀ ਘਾਤ 3। तो इस ते हुणे पिछे आपां फार्मूला याद किया सीगा, आ देखो किया सी ना। ये फार्मूला तुसीं इसे क्वेश्चन च लगना है। तो देखो उन्होंने फार्मूला भी कोई पेपर च दिता होया, तुसीं बस इत्थों उतारना ही है। फार्मूला की सीगा, पहले अखर दे उत्ते घात 3 माइनस दूजे अखर दे उत्ते घात 3 माइनस 3 ए दी 2 बी प्लस 3 ए बी दी 2। इदा होंदा फार्मूला बेटा, ए दी 3 माइनस बी दी 3 माइनस 3 ए दी 2 बी। हुण ए कौन है 100 है, बी 1 है, 100 बी 1। 100 की घात 3 का मतलब होंदा 2 0 दे बन जाने 2 1 1 2 घात 3 घात 1 की घात 1 ही रहेगी माइनस 3 तो बाद 2 घात है तो 2 0, ये आ गया 300। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। आंसर आ गया साढ़े कोल 1 2 3 3 0 300 1 2 3 4। इतने गलती होगी ना, तो 9 भी आना है। 970299 तो आंसर है। लो जी 25वें क्वेश्चन वाल। 27y दी 3 जमा 125z दी 3। थोड़ा जिहा औखा क्वेश्चन है, क्योंकि इतने 27y दी 3 असीं 3y दी घात 3 लिखांगे, तेनू 5z दी घात 3 लिखांगे। तो हुण फार्मूला तुहानूं याद होना चाहिए कि a दी घात 3 जमा b दी घात 3 का फार्मूला की होंदा है a जमा b, a दी घात 2 b दी घात 2 माइनस ab। हुण देखो a साडे कोल कौन है 3y, b कौन है 5z। ए 3y की घात 2 5z की घात 2 माइनस इन्हों गुणा करनी है 3 5 15 तो yz। आंसर आ गया 3y जमा 5z 3 3 9 y की घात 2 25 z की घात 2 माइनस 15 yz। ये तो आंसर। तो इस तरह साडा 9वीं क्लास का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होगी। जेकर फिर भी कोई क्वारी है जां तुहानूं अपने सिलेबस दा रिकॉर्डिंग चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियोज़ विद सल्यूशन क्वेश्चन आंसर सब की लोड़ है तो तुसीं मैनूं इस नंबर ते WhatsApp ते मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल के उत्ते तुहाडी 9वीं क्लास के हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज का सल्यूशन पिया विद बहुत ही सौखे ढंग नाल समझाई हुई। एक बार जरूर विजिट करो, तुहानूं वधिया लगेगा, तुहानूं बेनीफिट जरूर होएगा।